Hare Krishna, Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Shivasadi, Gaur Bhakta-vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
आनंद कोटि वैष्णव। Hare Krishna and Pranam, dear devotees. So, welcome to this special session with Anand Chaitanya Prabhu and Sitarani Mataji. We are very fortunate that they have agreed. They are both very busy. I keep on troubling them to give some session or some classes here to Prabhupada Kripa Sangha, but they have very busy schedule. And many of you know them because they've been giving classes on and off. So, but those who are new, I can share that they are senior devotees attached with the Radha Partha Sarthi Temple in Delhi, and they're both engaged in both management as well as preaching activities in Delhi Temple. And their primary service is preaching and management, but preaching to senior devotees. So most of their
classes. They are Mataji is taking long classes on Nectar of Devotion. और जिन्होंने आप लोग उसको याद होगा कि लास्ट ईयर माताजी ने एक सेशन लिया था एनओडी के ऊपर, अनभिलाषिता शून्यम के ऊपर भी, एंड इट वाज वेरी वेरी अप्रिशिएटेड. बाद में बहुत सब लोगों ने बताया था. सो टुडे आल्सो we'll have a topic on a unique session on a unique topic, understanding Lord's mercy, that sometimes we don't understand. और अभी कोविड के लिए इतना सब कुछ चल रहा है, so we thought it's a very apt topic to discuss, क्योंकि हम लोगों को मालूम नहीं है कि कृपा कैसे मिलती है भगवान की. और कई बार हमें लगता है कि कृपा नहीं मिल रही है, सिर्फ दंड ही दंड मिल रहा है. कभी कोई जो है so from Guru Sadhu Shastra we can see. So today we will hear from His Grace Anant Chaitanya Prabhu and Her Grace Sita Rani Mataji. Hare Krishna Mataji, Hare Krishna Prabhu, most welcome. Please. Thank you. Thank you so much, Roji. Thank you so Thank you. Thank you for giving us an opportunity to do a service. I know you've been asking us, but we are so unfortunate that we are not able to get your association as much as we want. So, Roji, शुरू करें हम? हाँ? कि wait कर- Prabhuji, you are on mute. Sorry. थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दीजिए, तब तक डिवोटीज और ज्वाइन कर जाएंगे. माता जी, just give a little synopsis what we are going to discuss, like that. Give us some. What I can do, well, let's start with prayers and then I will start with synopsis. Okay. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Utpadakamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadhvetam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitam Sha. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Okay, so should we start the session or should we start with the synopsis? अब पहले तो थोड़ा सा सिनॉप्सिस दे दीजिए माता जी, so we will Okay. understand also. Yes, ma'am. So basically, Giraj Prabhu and I were talking, हम दोनों की बात हो रही थी कि सेशन एक देना है. So आज के जो पूरा environment है उसके हिसाब से फिर हमने सोचा कि maybe we should present something on mercy. भगवान की कृपा किस तरह से हम समझ सकते हैं कि भगवान एक्चुअली अपनी कृपा दे रहे हैं. तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में सिचुएशंस आती हैं जो कि ऐसा लगता है कि भगवान हमें एक्चुअली कृपा नहीं दे रहे, बहुत सफरिंग आ रही है, बार बार कुछ ना कुछ पेनफुल एक्सपीरियंस हो रहा है. तो उसको हम किस तरह से भगवान की कृपा समझ सकते हैं, तो ये हम शास्त्रों के आधार पर आज देखेंगे, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको कि हम देख के समझ सकते हैं कि
एक्चुअली में भगवान की कृपा क्या है। तो आज ये हमारा सेशन उसी पे बेस्ड है। भागवतम से हमने कई एग्जाम्पल्स लिए हैं और भक्तों के एग्जाम्पल्स हैं कि जिनकी लाइफ में सफरिंग है, और हम उनसे समझ सकते हैं कि एक्चुअली में जो भगवान की कृपा है उसको हम कैसे समझ सकते हैं अपनी लाइफ में इन एग्जाम्पल्स के द्वारा। ठीक है, सो इज इट ओके टू स्टार्ट? ओके, सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। Is the screen visible? Okay. So topic जैसे ने पहले बताया कि टॉपिक आज का है अंडरस्टैंडिंग मर्सी, किस तरह से भगवान की कृपा को समझा जाए। तो जो डेफिनेशन है डिक्शनरी, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी का जो डेफिनेशन है वो क्या है? मर्सी या कृपा का क्या मतलब है? एक ब्लेसिंग दैट इज एन एक्ट ऑफ डिवाइन फेवर और कंपैशन, कि ऐसी कुछ मतलब ऐसा फेवर मिलना भगवान से या इस तरह की दया मिलना कि जिसको हम कृपा के रूप में समझ सकें। तो इट्स लाइक अ ब्लेसिंग। तो ऐसा जो है वेबस्टर की डिक्शनरी में मर्सी को या कृपा को इस तरह से डिफाइन किया गया है। तो हम लोग जो नॉर्मली किसी की लाइफ में भी अगर आप देखेंगे, किसी से पूछेंगे कि कृपा, आप कृपा से क्या समझते हैं, तो लोग क्या कहते हैं? नॉर्मली लोग इस तरह का आंसर देंगे कि जब हमारा जीवन बिल्कुल सही चल रहा हो, कोई दिक्कत नहीं आ रही हो, तो वो भगवान की कृपा है। या फिर हम ये चाहते थे और भगवान ने हमारी इच्छाओं की पूर्ति की, तो ये कृपा है। या फिर हम ऐसे भी सोचते हैं कि अगर हम और हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो परिवार वाले हैं, अगर वो सब स्वस्थ हैं और वो सब ठीक हैं, तो ये भी भगवान की कृपा है। तो नॉर्मली हम जो भी हमारी लाइफ में कुछ पॉजिटिव होता है उसको हम क्या समझते हैं कि ये भगवान की कृपा है। लेकिन एक भक्त कैसे, भक्त जो है किस तरह से देखता है? तो कृपा जो है, आप अगर देखेंगे हम शास्त्रों के हिसाब से, तो कृपा दो तरह की होती है। एक को कहते हैं बिटर मर्सी और दूसरे को कहते हैं स्वीट मर्सी। तो अभी तक हमने जो भी एग्जाम्पल्स देखे कि किसको हम कृपा नॉर्मली समझते हैं, तो वो क्या है? बेसिकली स्वीट मर्सी। तो स्वीट मर्सी के एग्जाम्पल्स हैं, हम नॉर्मली जब सब कुछ हमारे हिसाब से होता है या हम सब ठीक हैं या जो हम चाहते हैं वैसा होता है, तो हम समझते हैं क्या है कि ये भगवान की कृपा है। और एक डिवोटी कैसे समझता है भगवान की कृपा? डिवोटी को लगता है जब मुझे भक्तों का संग मिलता है, स्पेशली जो उच्च कोटि के भक्त हैं उनका संग मिलता है, तो ये जरूर भगवान की कृपा है। या भक्त इस तरह से भी सोचते हैं कि अगर मेरी साधना अच्छी चलती है और मैं अच्छे से जप कर पा रहा हूँ, अच्छे से मैं समय पे शास्त्र पढ़ पा रहा हूँ, कुछ सुन पा रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरे पे भगवान की कृपा है। या मेरी जो सेवा है उसमें कोई अड़चन नहीं आ रही, मैं ढंग से सेवा कर पा रहा हूँ, तो ये भी भगवान की कृपा है। या फिर मैंने कोई ऐसे प्रोजेक्ट प्लान कर रखे हैं या कुछ अपने गोल्स प्लान कर रखे हैं और वो सारा कुछ बिना किसी इंटरप्शन के जैसे मैं चाहता था और जैसे मैंने प्लान किया था उस तरह से हो रहा है, तो उसको मैं, एक भक्त क्या समझता है कि मुझ पे भगवान की कृपा है। ठीक है, तो लेकिन बिटर मर्सी किस तरह से दिखती है? ये जो हमने अभी एग्जाम्पल लिए क्या था कि जब भगवान की स्वीट मर्सी हमें मिलती है, और जब बिटर मर्सी मिलती है तो किस तरह से दिखती है? कई बार हमारी मटेरियल लाइफ में, हमारी भौतिक लाइफ में बहुत डिस्ट्रेस आ जाता है। डिस्ट्रेस इन द सेंस की मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ सफरिंग, इन द सेंस कि किसी रिलेटिव को सफरिंग है जिसकी वजह से हमें सफरिंग आ रही है, या हमारे डे टू डे लाइफ में कुछ कोई ऐसा इशू आ गया जिससे कि हम सफर कर रहे हैं, जिसको हम रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से डिस्ट्रेस जब आता है, या फिर बॉडीली डिस्ट्रेस मतलब बीमार पड़ना या किसी हमारे क्लोज व्यक्ति को बीमारी होना, या फिर किसी से ह्यूमिलिएशन होना कि कोई हमें बहुत जो है बेइज्जत करे, कोई बहुत हमारे वो इंसल्ट करे, तो ये भी एक डिवोटी की लाइफ में एक बिटर मर्सी है। या फिर किसी वैष्णव से डांट पड़ना। तो नॉर्मली जब हम इस तरह के सिनेरियो को देखते हैं तो हमें लगता है कि कैसे ये मर्सी किस तरह से हो सकती है ना? ये कैसे मर्सी है कि डांट पड़ना या सफरिंग आना या किसी से ह्यूमिलिएशन होना या हमारी मटेरियल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आना, तो इसको हम मर्सी की तरह किस तरह से देखें? तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देते हैं। तो जो लोग, आप लोग फेमिलियर होंगे, 10th कैंटो में भागवतम के ये कथा आती है नल कुबेर और मणिग्रीव की। तो नल कुबेर और मणिग्रीव जो थे, दोनों कुबेर के पुत्र थे।
है ना। कुबेर कौन है? खजांची है, देवताओं के खजांची है। तो बहुत पैसे वाले मतलब घराने से ये दोनों थे। तो इनको इस तरह के शौक थे कि ये मतलब मदिरा पीने का शौक था, और जो डैमसेल्स ऑफ लाइक हेवनली डैमसेल्स है, मतलब स्वर्ग की जो लड़कियां हैं उनके साथ ऐशो आराम करने का शौक था। तो एक बार ऐसे ही हुआ कि वहां बेसिकली नंदन कानन में देवर बेडिंग इन रिवर लेक, और उनके साथ बहुत सारी हेवनली डैमसेल्स भी थी, और ये बुरी तरह से शराब पिए हुए थे। तो वहां पे नारद मुनि आए। तो जब नारद मुनि वहां पे आए, तो जब उन लड़कियों ने देखा कि नारद मुनि आ रहे हैं, तो उन्होंने फटाफट क्या किया, अपने तन को कपड़ों से ढक लिया। लेकिन ये दोनों जो है बिल्कुल बेशरम की तरह वहीं की वहीं खड़े रहे। तो जब नारद मुनि ने देखा कि इनको इतना ज्यादा घमंड है, और पैसे का घमंड है, और उस घमंड की वजह से ये भूल गए हैं कि एक्चुअली आचार क्या है। जैसे नशा, जब किसी चीज का नशा हो जाता है तो बिल्कुल एक व्यक्ति क्या हो जाता है, होश आवाज खो देता है। तो इसी प्रकार से इन लोगों को किसका नशा था? इनको अपनी वेल्थ का, इनको अपने पैसे का नशा था। तो नारद मुनि ने जब देखा, तो जो एक सेंटली पर्सन किसी का डिस्ट्रेस नहीं देख सकता। अब हम ये कैसे समझें कि ये डिस्ट्रेस है? क्योंकि नारद मुनि जानते हैं कि इनको एक देवताओं के घर पे जन्म मिला है, हेवनली प्लैनेट्स में जन्म मिला है, और अगर वो इस तरह की हरकतें करके अपना जीवन बिताएंगे तो उनका अगला जन्म क्या होगा? किसी नीची योनि में होगा। तो नारद मुनि नहीं चाहते कि वो अपने जन्म को खराब करे। तो नारद मुनि ने क्या किया? नारद मुनि ने उनको श्राप दिया। क्या श्राप दिया? क्योंकि आप लोग नग्न खड़े हो और आपको नग्न रहने का इतना शौक है, तो आप पेड़ बन जाइए। क्योंकि पेड़ की जो योनि होती है, तो हम देखते हैं पेड़ जो है कपड़े नहीं पहनते। तो जिन लोगों को नग्न रहने का शौक है, तो उनको नॉर्मली इस तरह से बर्थ मिल सकता है अगला, कि उनको पेड़ की योनि मिले। तो नारद मुनि ने इन दोनों को श्राप दिया कि आप दोनों पेड़ बन जाइए। और उस श्राप के साथ क्या कहा कि जब नारद मुनि ने देखा कि इनको थोड़ा पछतावा हो रहा है और इनको ऐसा लग रहा है कि हमसे गलती हो गई, तो नारद मुनि ने उनको कहा कि मैं आपको ये श्राप देता हूं कि आप नंद महाराज के कोर्टयार्ड में, नंद महाराज के आंगन में जाके 2 पेड़ बनिए, अर्जुन वृक्ष बनिए, और देवताओं के 100 वर्ष के बाद आपका उद्धार स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा होगा। ठीक है। तो 100 वर्षों तक वो वहां पर पेड़ बने रहे, और 100 वर्षों के बाद भगवान ने अपने ऊखल को दोनों पेड़ों के बीच में फंसा के उन दोनों को जो है डिलीवर किया, उन दोनों को अपने उनके श्राप से मुक्त किया। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट देखें कि उनको श्राप मिला, तो हमें लगेगा कि कितना बुरा हुआ उनके साथ, हाउ इज दिस मर्सी, इतना बुरा हुआ उनके साथ। लेकिन जब हम सेकंड पार्ट देखते हैं कि एक्चुअली में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने भगवान की बाल लीलाओं को देखा, और उनमें ये 2 पेड़ थे, ये नल कुबेर और मणिग्रीव भी 2 थे जिन्होंने भगवान के बाल लीलाओं के दर्शन किए, और उसके बाद स्वयं भगवान के द्वारा उनका उद्धार हुआ। तो हम समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी एक्चुअली कृपा है। तो जो शॉर्ट टर्म में हमें ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा कर्ज, एक्चुअली इन लॉन्ग टर्म इट कैन टर्न आउट टू बी द बिगेस्ट मर्सी। अदरवाइज जो हेवनली प्लैनेट्स में रहते हैं, उनको भगवान का संग मिलना, भगवान के दर्शन मिलना आसान नहीं है, और स्वयं भगवान कृष्ण के दर्शन मिलना तो बहुत ही दुर्लभ है। और इन लोग दोनों को क्या हुआ? स्वयं भगवान कृष्ण के दर्शन मिले, और भगवान के द्वारा उनका उद्धार हुआ, और उसके बाद ये जो है दोनों भक्त बन गए भगवान के। तो ये जो है इट इज एक्चुअली मर्सी, है ना। तो जब एक भक्त के द्वारा पनिशमेंट मिलती है या चैस्टाइजमेंट मिलती है, तो उसको हमें फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए। फेस वैल्यू इन द सेंस कि हमें चैस्टाइजमेंट मिली तो हम ऐसा सोचें कि अच्छा हमारे साथ बहुत बुरा हो गया। सो हमें हमेशा इस तरह की चेतना रखनी चाहिए, इस तरह का मूड रखना चाहिए कि चैस्टाइजमेंट मिली है तो इसमें भी मेरा कुछ भला है। दिस इज ऑल्सो मर्सी। कि जैसे हमने देखा कि नारद मुनि के श्राप से जो है ये नल कुबेर और मणिग्रीव, उनका उद्धार हुआ। वो दोनों जो है नंद महाराज जी के आंगन में 2 पेड़ बनकर रहे, और उनका उद्धार स्वयं श्री कृष्ण के द्वारा हुआ। एक्चुअली हम ये शायद सोच सकते हैं कि उनको इतना टाइम वहां पेड़ बन के रहना पड़ा, तो ये किस तरह से मर्सी हुई। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह समझने का है वो है कि एक जीव के लिए, एक सोल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि वो भगवान के भक्त बन जाए। अब आप
सैकड़ों हजारों साल तक एंजॉय करते रहें और भगवान के भक्त ना बने, तो वो लाइफ ऑफ एंजॉयमेंट बिल्कुल यूजलेस है। दैट लाइफ ऑफ एंजॉयमेंट आपको हेवनली प्लैनेट्स में मिल रहा है, सब प्लेजर मिल रहा है, बट दैट इज ऑफ नो यूज अनलेस एंड अनटिल हम भगवान के भक्त बने, वो लाइफ बिल्कुल बेकार है। तो इनके लिए ये मर्सी इसलिए थी बिकॉज इस सारे एपिसोड के बाद ये भगवान के भक्त बने। और अगर कोई भी, अगर हम भगवान के भक्त बनते हैं, तो जो ये ह्यूमन लाइफ है उसका एडवांटेज, बिल्कुल मैक्सिमम एडवांटेज लेना है ना। तो जिस तरह से, जैसे हम देख सकते हैं एग्जाम्पल कि इवन हमारी लाइफ में भी, कि जब हम छोटे थे और मतलब स्कूल नहीं जाना चाहते थे, अपना होमवर्क नहीं करना चाहते थे, तो हमारे पेरेंट्स हमें डांटा करते थे। तो वो जो डांट है वो क्या है, वो एक्चुअली इट इज नॉट बिकॉज दे डोंट लाइक अस, इसलिए नहीं डांट रहे हैं वो क्योंकि वो हमें प्रेम नहीं करते या उनको हमसे कोई प्रॉब्लम है इसलिए। बट वो जानते हैं कि अगर ये बच्चा ठीक से पढ़ेगा नहीं, आगे अपना होमवर्क नहीं करेगा, ठीक से पढ़ेगा नहीं, तो इसकी आगे की लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी, टफ हो जाएगी, या आगे चल के क्या कर पाएगा। तो एक्चुअली इट इज अ जेन्युइन एक्सप्रेशन ऑफ हिज लव। लेकिन उस टाइम जब हमें डांट पड़ती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट्स जो है पता नहीं वो हमें प्रेम नहीं करते, या पता नहीं हमारे दुश्मन है, क्या चक्कर है जो उनसे हमें हमारी खुशी नहीं देखी जाती। बट जब हम बड़े होते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, जब वो हमें डांट रहे थे, हमें सुधारने की कोशिश कर रहे थे, तो एक्चुअली इट वाज एन एक्सप्रेशन ऑफ लव, है ना। तो हम ऐसा समझ सकते हैं। तो इसी तरह से भगवान भी जो है अपने जो डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए कभी कभी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं जिससे कि जो डिपेंडेंट है उनका वो सुधर जाए और इस भौतिक जीवन के चक्कर से बाहर निकले और भगवत धाम जा सके या भगवान की सेवा में पूरी तरह से संलग्न हो सके। तो भागवत में ऐसा आता है कि मटेरियल वर्ल्ड जो है क्या है, इट इज फुल ऑफ डेंजर, पदम पदम यत विपदाम न तेषाम, है ना, कि हर पल पे जो है इस भौतिक जगत में क्या है, दुख है, डर है। तो जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, हम एक्चुअली सफरिंग से बच नहीं सकते, बिकॉज भगवान स्वयं कहते हैं, 8 चैप्टर जो है भगवत गीता का, उसमें भगवान स्वयं क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो भौतिक जगत है ये क्या है, दुखालयम अशाश्वतम। दुखालयम अशाश्वतम मतलब कि यहाँ पर दुखी दुख है और यहाँ पर ये अशाश्वत है, मतलब कि टेम्पररी है। यहाँ पर परमानेंटली न रहा जा सकता है और यहाँ पर सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, यहाँ पे दुख ही दुख है। तो ठीक, तो इसी तरह से हमें समझना चाहिए कि यहाँ पर जो दुख मिलते हैं, बेसिकली इट इज एन इम्पेटस फॉर अस टू डेवलप आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कि जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमें समझना चाहिए कि ये मेरे को भगवान एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, किसके लिए, कि मैं और अपनी भक्ति में तीव्रता से लग सकूं, भक्ति में और डीपली जा सकूं, सो दैट कि जब मेरा ये शरीर छूटे तो मेरा जो अगला डेस्टिनेशन हो, दैट इज अ वेरी ऑस्पिशियस डेस्टिनेशन, मैं भगवान की इटर्नल सेवा में लग सकूं। तो ऐसा एक मूड डिवोटी का होता है कि जब कभी भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है तो एक डिवोटी उसको बहुत पॉजिटिवली लेता है। उस टाइम मे बी इमीडिएटली सम ऑफ अस मे नॉट रियलाइज कि दिस इज एक्चुअली अ पॉजिटिव थिंग, बट अगर हम हाइंडसाइट में देखें, कभी हम जब वो समय निकल जाता है और हम वापस पीछे मुड़ के देखें, तो हमें ये समझ में आएगा कि एक्चुअली वो जो समय आया था हमारी लाइफ में, इट रिजल्टेड इन स्पिरिचुअल ग्रोथ। अगर हम उसको प्रॉपर मूड और प्रॉपर तरीके से अगर उस टाइम को, उस सिचुएशन को हैंडल करें, तो इट रिजल्ट्स इन लॉट ऑफ ग्रोथ स्पिरिचुअली। अगर हमारी लाइफ अच्छी चले जा रही, इवन फॉर अ डिवोटी, इफ द लाइफ इज स्मूथ, फिर क्या होगा कि हम लोग सीरियस नहीं होंगे भक्ति में, डीप नहीं जाएंगे, और फिर परफेक्शन नहीं अटेन कर पाएंगे, ये जीवन छोड़ देंगे जब, तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो उसका कोई फायदा नहीं है। लाइफ स्मूथ चलती रहे और बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहें, दैट इज ऑफ नो यूज। तो यहाँ जो हम मर्सी की बात कर रहे हैं वो यही मर्सी है कि जब दुख आ रहा है तो हम ये रियलाइज कर रहे हैं कि ये जो जगत है ये दुखालयम अशाश्वतम है, और इससे फिर हमें ये रियलाइज होता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है। तो जैसे टाइटैनिक का एग्जाम्पल है कि टाइटैनिक को जब बिल्ड किया गया था, आप लोग सबने टाइटैनिक के बारे में सुना होगा, तो पहले ही वॉयज में वो डूब गया, राइट। और लेकिन जिन्होंने बनाया वो क्या कहते थे कि भगवान भी इसको नहीं डुबा सकते, ये ऐसा शिप हमने तैयार किया है
कि भगवान भी नहीं बस इसको डुबा सकते, और वो पहली वॉयज में ही डूब गया। तो इसी तरह से हम भी जो है इस मटेरियल वर्ल्ड में बहुत डेंजरस पोजीशन में है। हमें ऐसा लग सकता है कि हम जो है बिल्कुल सेफ हैं, बट एक्चुअली वी आर नेवर सेफ। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है इस मटेरियल वर्ल्ड में। तो जब, और भगवान ये जानते हैं कि बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हमारे लिए, तो भगवान बार बार अरेंज करते हैं अलग अलग प्रकार के सिचुएशन हमारी लाइफ में, सो दैट वी कैन कम आउट ऑफ दिस, सो दैट वी कैन एक्चुअली अचीव परफेक्शन। तो भगवान जो है इसीलिए हर चीज को हमारी लाइफ में बार बार अरेंज करते हैं। और एक डिवोटी की लाइफ में जो एक्चुअली सबसे बड़ा भय है वो क्या है? भगवान को भूल जाना, forgetfulness of Krishna. That is the greatest fear in a devotee's life, है ना? तो एक भक्त जो प्रॉपरली सिचुएटेड होता है वो कहता है मैं कहीं भी जाने को तैयार हूं अगर वहां पे भगवान की सेवा है। अगर भगवान मुझे नर्क में भेजेंगे मैं नर्क में जाने को तैयार हूँ, स्वर्ग भेजेंगे स्वर्ग जाने को तैयार हूँ, इस भौतिक जगत में अगर यहाँ पे अर्थी प्लैनेट्स में भेजेंगे तो मैं वहां जाने को तैयार हूँ। हाँ, तो लेकिन अगर हर समय मुझे भगवान का चिंतन है, भगवान का ध्यान है, मैं कहीं भी जाने को तैयार हूँ। बिकॉज भगवान को भूल जाना, दैट इज द वर्स्ट सिचुएशन फॉर अ डिवोटी। और भगवान अगर याद है तो एक डिवोटी कहीं पे भी जाने को तैयार हो जाता है, ठीक है ना? तो भगवान जो शिव जी हैं, जब पार्वती जो आप ये एक प्रसंग आता है 6th कैंटो में, पार्वती जी जो है चित्रकेतु महाराज को कर्स करती हैं, उनको श्राप देती हैं कि आप एक राक्षस बन जाइए। तो जब चित्रकेतु को ये श्राप मिलता है तो वो पार्वती को जो है अपना ओबेसेंस पे करते हैं, उनको जो है नमस्कार करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तो जब पार्वती ये देखती हैं तो उनको बड़ी हैरानी होती है कि मैंने इसको श्राप दिया और ये कितने खुशी खुशी इसने एक्सेप्ट कर लिया और बिल्कुल भी मतलब ये परेशान नहीं हुआ। तब शिव जी क्या कहते हैं कि भगवान के जो भक्त हैं उनके लिए ये सब कुछ, ये जो आपने श्राप दिया है ये कुछ भी नहीं है, ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर उनको भगवान का चिंतन है तो ऑल दीज थिंग्स डू नॉट मैटर। एक डिवोटी के लिए बाकी सब चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। अगर भगवान के बारे में वो सोच सके और भगवान को सर्व कर सके, दैट इज द ग्रेटेस्ट बेनेडिक्शन फॉर अ डिवोटी। और जब डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं तो क्या होता है? वी आर फोर्स, हम फोर्स हो जाते हैं कि हम भगवान को और याद रखें, भगवान को प्रे करें। क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें लगता है कि और कोई शेल्टर नहीं है, हमारा और कोई आश्रय नहीं है, तो हम भगवान की तरफ अपना जो मुंह है भगवान की तरफ टर्न करते हैं और बार बार क्या करते हैं? भगवान से प्रे करते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमारा जो रिलेशनशिप है भगवान के साथ, दैट बिकम स्ट्रोंगर। क्योंकि हम जो है भगवान की तरफ जब टर्न करते हैं एंड भगवान को बहुत हार्ट से अपने प्रे करते हैं, तो क्या होता है? आवर रिलेशनशिप विद द लॉर्ड बिकम स्ट्रोंगर। और भगवान क्या करते हैं? भगवान कई बार अपने भक्तों को ऐसी सिचुएशन में डालते हैं कि अगर कोई देखे बाहर वाला तो उसको समझ में नहीं आएगा कि भगवान ने ये तो भगवान का भक्त था, तो भगवान ने ऐसी सिचुएशन मेरे अपने भक्त पे क्यों आने दी? तो भगवान क्या करते हैं? भगवान जानते हैं कि हमें किस मेडिसिन की जरूरत है ताकि हम जो है भौतिक आकर्षण से अपने आप को छुड़ा सके और भगवान से अपने प्रेम का संबंध जो है उसको प्रगाढ़ बना सके। तो भगवान क्या करते हैं? जो एक डिवोटी है उसके कर्मों को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि हमें जो लेसन सीखने की जरूरत है हम वो लेसन सीखें ताकि हम भगवान से अपने संबंध को और प्रगाढ़ बना सकें। ठीक है, तो ये आता है 10:14-8 में। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं तत्यनुकंपम सुमीक्षमानो भुंजानेवात्म कृतम विपाकम तद्वाग वपूर्वीर विदधन नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाया भाग। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि हे भगवान, जो व्यक्ति बहुत पेशेंटली वेट करता है कि आप उस पर अपनी कृपा दिखाएंगे और अपने पूर्व जन्मों के जो कर्म है उनको बिल्कुल पेशेंटली सहता है, बर्दाश्त करता है और एट द सेम टाइम और आपको प्रणाम करता है। किससे? बॉडी, वर्ड्स एंड माइंड, मतलब अपने शरीर से, अपने वर्ड से और अपने मन से। तो ऐसा व्यक्ति जो है श्योरली आपके पास आपके धाम उसका वो राइटफुल क्लेम बन गया है ना? तो एक जो भक्त है जब उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो ही डज नॉट गेट बिविल्डर्ड।
हाँ, ये जरूर है कि कभी हमारी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जो कि इट्स पेनफुल, तो हम थोड़े टाइम के लिए वी बिकम वी क्राई, वी एक्सप्रेस आवर ग्रीफ, तो वो सब ठीक है एक डिवोटी के लिए। बट एक डिवोटी क्या है, बिविल्डर नहीं होता। बिविल्डर का मतलब है कि कभी उसका ये विश्वास जो है कम नहीं होता कि भगवान जो है मेरे एक्चुअली में प्रोटेक्टर और मेंटेनर है, और भगवान मेरी लाइफ में जो भी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं वो मेरी भलाई के लिए है, और भगवान ने जो किसी और भक्त की लाइफ में ये जो सिचुएशन क्रिएट करी है वो उसकी भलाई के लिए है। तो ये विश्वास एक भक्त का कभी भी कम नहीं होता किसी भी सिचुएशन में। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि एक भक्त जो है डेंजर से या कैलामिटी से कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता। तो फर्स्ट कैंटो भागवतम में ये आता है कि जब भगवान हस्तिनापुर से द्वारका की तरफ जाते हैं, तो महाभारत के युद्ध के बाद भगवान जो है हस्तिनापुर में रहते हैं थोड़ा टाइम पांडवों के साथ, और उसके बाद जो भगवान पांडवों से कहते हैं कि मैं अब हस्तिनापुर छोड़कर द्वारका जाना चाहता हूँ। तो जब भगवान रथ पे बैठते हैं द्वारका जाने लगते हैं, तो कुंती महारानी प्रेयर्स करती हैं। कई प्रेयर्स हैं, पूरा चैप्टर है, 8 चैप्टर भागवतम में फर्स्ट कैंटो में, जो कि कुंती महारानी का प्रेयर्स हैं। तो उसमें ये प्रेयर जो है 1:8:25 ये बहुत फेमस प्रेयर है। तो इसमें कुंती महारानी बेसिकली क्या प्रे करते हैं कि हे भगवान, मैं ये चाहती हूँ कि जो मुसीबतें हैं मेरी लाइफ में वो बार बार आए। हाँ, क्योंकि जब मुसीबत आएगी तो हम आपको बार बार देख पाएंगे, और जब हम आपको बार बार देखेंगे तो हमें इस भौतिक जगत में के जो जन्म और मृत्यु का जो ये चक्र है उससे हम बाहर निकल जाएंगे। तो बेसिकली कुंती महारानी क्या कह रही है कि भगवान जो ये मुसीबत आ रही है इसको मैं वेलकम करती हूँ, इसको मैं आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि जब ये मुसीबत आती है तो क्या होता है, मैं आप पे स्मरण जो है, आपका स्मरण मेरे को और ज्यादा स्ट्रांगली होता है। क्योंकि हम देख सकते हैं अपनी लाइफ में भी, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब हम बहुत खुश हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, तो भगवान का स्मरण जो है वो तीव्रता से हम नहीं कर पाते। लेकिन जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो और हमें समझ में आता है कि इस भौतिक जगत में हमारा कोई और आश्रय नहीं है, और तो हम क्या करते हैं, भगवान की तरफ टर्न करते हैं, और हमारा जो भगवान के प्रति चिंतन है, भगवान के प्रति समर्पण है, वो तीव्र हो जाता है। तो दिस इज आवर ओन रियलाइजेशन, एंड आई एम श्योर कि हर भक्त को किसी ना किसी टाइम पे रियलाइज होता है कि जब थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो इमीडिएटली जैसे हम भगवान के की तरफ टर्न करते हैं, भगवान के शेल्टर में जाने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, हम एक्चुअली फील करते हैं कि भगवान हमारे क्लोज है ना, हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारे क्लोज है। सो दिस इज अ ग्रेट बेनेडिक्शन, और इसीलिए कुंती महारानी ये प्रे कर रही है ना। नहीं तो अदरवाइज क्यों एक इस तरह का जो एक डिवोटी है वो इस तरह से क्यों प्रे करेगा कि भगवान आप जो ये डेंजरस सिचुएशंस है मेरी लाइफ में बार बार लाइए। जैसे कि हम देख सकते हैं लेफ्ट में आप जो पिक्चर देख रहे हैं, ये लाक्षागृह की पिक्चर है। ये सब लोग जो लोग भी महाभारत से परिचित हैं तो ये जानते हैं कि जो दुर्योधन, एक बार जो दुर्योधन ने वारणावत में भेजा पांडवों को, और वहां पर 1 लाख से उन्होंने पैलेस बनवाया, एक रहने का स्थान बनवाया, और पांडवों को कहा कि आप वहां जाके रहिए। तो लेकिन विदुर जो है उनको आइडिया लग गया था कि दुर्योधन के मन में कुछ चाल है, तो उन्होंने हिंट दे दिया था पांडवों को कि आप वहां जाएंगे तो आप बहुत ध्यान से रहिएगा। तो जब पांडव वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि ये लाख का घर है। तो विदुर जो है उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा जिसने कि उनके लिए सुरंग बनाई, और उस सुरंग से बाहर निकल आए, और जब दुर्योधन के जो असिस्टेंट्स थे उन्होंने जब उसको आग लगाया तो पांडव जो है वो बच गए। तो इस तरह से बहुत सारी कैलामिटीज आई, बहुत पांडवों की लाइफ में अगर आप देखेंगे तो इट इज फुल ऑफ कैलामिटीज, इतनी कैलामिटीज हैं, बार बार सफरिंग, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और ऑन द अदर हैंड हम ये भी जानते हैं कि पांडव जो है भगवान के प्योर डिवोटीज हैं। तो हम कैसे समझे इसको, है ना, क्यों ऐसा होना चाहिए। तो और क्यों कुंती महारानी कह रहे हैं, क्योंकि इतनी सफरिंग उन्होंने देखी है, और हर सफरिंग के बाद उनको ये रियलाइज हुआ है कि सफरिंग के टाइम हमें भगवान का जिस प्रकार से चिंतन होता है वो नॉर्मली में नहीं होता। तो इसीलिए शी इज सेइंग दैट कृष्णा प्लीज ब्रिंग दिस सिचुएशन अगेन एंड अगेन, है ना। इसी तरह से जब प्रहलाद महाराज के जो पिता है हिरण्यकश्यपु, वो बार बार प्रहलाद महाराज को मारने की कोशिश करते हैं। ये हम पढ़ते हैं 7th कैंटो भागवतम में
कि किस तरह से प्रहलाद महाराज को पे अलग अलग प्रकार के अत्याचार करते हैं, क्योंकि प्रहलाद महाराज जो है वो विष्णु भक्त थे और हिरण्यकशिपु जो है वो विष्णु के को अपना दुश्मन समझते थे। तो जब प्रहलाद को उन्होंने अलग अलग डेंजरस सिचुएशन में डाला, कभी हाथियों से उनको कोशिश की कि हाथी जो है उनको कुचल दें, कभी जो जहरीले सांप है उनको डस दें, इस तरह की अलग अलग प्रकार की कोशिश की। तो प्रहलाद ने क्या किया, ही ऑलवेज ओनली मेडिटेटेड ऑन कृष्णा। कोई भी सिचुएशन आती थी, प्रहलाद महाराज क्या करते थे, भगवान का स्मरण करते थे। तो इसी तरह से जब हमारे ऊपर भी डेंजरस सिचुएशन आती है तो हमारे लिए क्या है, एक इम्पेटस है। क्या है इम्पेटस? क्या है कि हम भगवान का स्मरण कर सकें। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हमारी लाइफ में कुछ अनप्लेजेंट, डेंजरस इस तरह की सिचुएशन आए तो वी शुड ट्राई टू रिमेम्बर कृष्णा विद मोर इंटेंसिटी। तो इसलिए और हमें समझना चाहिए कि जिस तरह से एक डॉक्टर एक मरीज जो है वो जब उसको एक कोई बीमारी होती है तो एक डॉक्टर क्या करता है, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। कई बार वो बहुत बिटर होती है मेडिसिन, तो जब वो मरीज वो मेडिसिन को लेता है तो मतलब बहुत वो कहता है कि ये बहुत कड़वी मेडिसिन है, मैं लेना नहीं चाहता। लेकिन डॉक्टर उसको कहता है कि अगर आप इस मेडिसिन को लेंगे नहीं तो आप ठीक नहीं होंगे। तो कई बार मरीज जो है वो डॉक्टर को कर्ज भी करता है कि पता नहीं है डॉक्टर ने मुझे क्या दे दिया है। लेकिन जब वो ठीक हो जाता है तो उसको क्या रियलाइज होता है कि एक्चुअली वो डॉक्टर क्या था, वो मेरा शुभचिंतक था, क्योंकि उसने मुझे ऐसी मेडिसिन दी जिससे मैं ठीक हो गया। तो इसी तरह से भगवान कई बार इस तरह की कृपा देते हैं जो देखने से कृपा नहीं लगती। देखने से ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ, क्यों भगवान हम हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, हमने भगवान का क्या बिगाड़ा था या हमने किसी और का क्या बिगाड़ा था। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि एक्चुअली में भगवान की कितनी असीम कृपा है हमारे ऊपर, है ना। तो एक डिवोटी, एक भक्त को हर सिचुएशन को कैसे देखना चाहिए कि ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरे को, एक अपॉर्चुनिटी है मेरे पास भगवान पे ज्यादा डिपेंड करने के लिए। तो हम राइट साइड में ये जो देख रहे हैं पिक्चर, ये 8th कैंटो में ये कथा आती है, ये है गजेंद्र मोक्ष कथा। तो आप लोग सब लोग शायद इस बात से फेमिलियर होंगे कि गजेंद्र जो है एक बहुत शक्तिशाली हाथी थे, बहुत शक्तिशाली। और ऐसा बताया जाता है कि जब वो चलते थे तो पूरी की पूरी पृथ्वी हिला करती थी, मतलब इतना बल था उनके अंदर। तो एक बार वो अपने हथनी के जो झुंड के साथ वहां पे एक रिवर पे आए स्नान करने के लिए। तो जब वहां स्नान करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने बहुत मतलब अपने सारे फैमिली मेंबर्स के साथ एंजॉय किया पानी में। तो सब लोग बाहर निकल गए और जब गजेंद्र निकलने लगे तो एक क्रोकोडाइल, एक ग्राह ने उनका क्या किया, पैर जो है पकड़ लिया। तो गजेंद्र बहुत बलशाली थे, तो गजेंद्र ने बड़ी कोशिश की कि मैं बाहर निकल जाऊं, हाँ बाहर अपना पैर बाहर निकाल लूं और यहाँ से निकल जाऊं। और शुरू में जो उनके रिलेटिव्स थे, जो उनके बच्चे थे, उन्होंने भी बड़ी हेल्प की कि वो बाहर आ जाएं। लेकिन जब उनको सबको रियलाइज हुआ कि ये जो क्रोकोडाइल है, ये ग्राह है, बहुत ज्यादा पावरफुल है और शायद गजेंद्र से भी ज्यादा पावरफुल है, तो वो उनको छोड़ के निकल गए, वो छोड़ के चले गए। और इस गजेंद्र और ग्राह के बीच में ये जो युद्ध है वो 1000 वर्षों तक चला। कई बार गजेंद्र उनको खींच के जो है बाहर ले आते थे पानी के, और कई बार क्रोकोडाइल उनको खींच के पानी में ले जाता था। तो 1000 वर्ष जब पूरे होने को आए तो गजेंद्र को ये रियलाइज हुआ कि अब जो है मेरी शक्ति है वो बिल्कुल क्षीण हो चुकी है और मैं इससे ज्यादा देर तक अब फाइट नहीं कर पाऊंगा और मेरे प्राण चले जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान की स्तुति करना शुरू किया, है ना, स्तुतियां करना शुरू किया और ये कहा भगवान को कि आप मुझे बचाइए। और भगवान ने जब सुना कि मेरी स्तुति कर रहा है ये, तो भगवान गरुड़ पे बैठ के अपने धाम से वहां पहुंचे। और जब गजेंद्र ने देखा दूर से भगवान को आते हुए, तो उन्होंने उस जो रिवर है, वो जो नदी थी, उसमें से उससे एक लोटस का फ्लावर तोड़ा और भगवान को ऑफर किया। और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस जो क्रोकोडाइल है उसका गला काट दिया। और उसके बाद जो है दोनों गजेंद्र और क्रोकोडाइल में से 2 सेलेस्टियल, हाँ 2 देवता समान लोग, दो देवता के समान लोग निकले। और फिर बताया गया कि जो गजेंद्र थे वो पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे। और एक बार अगस्त मुनि आए उनके पास तो उन्होंने अगस्त मुनि को देखकर उनका स्वागत नहीं किया। और
बैठे रहे, अपने चिंतन में, भगवान के चिंतन में बैठे रहे। तो जब अगस्त मुनि ने ये देखा कि ये जो है ये एक्चुअली में उतना ज्यादा डीपली इन्वॉल्व नहीं है चिंतन में, ही इज एक्टिंग, तो उन्होंने कहा कि आप हाथी की तरह बैठे हो, तो मैं आपको श्राप देता हूँ, हाथी बन जाओ। तो वो जो राजा हैं, जो कि अदरवाइज ही वॉज अ वेरी गुड पायस किंग एंड अ डिवोटी ऑल्सो, तो वो उनको अगले जन्म में क्या मिला, गजेंद्र का रूप मिला। और इसी तरह जो ये क्रोकोडाइल था, वो भी एक गंधर्व थे। और एक बार उन्होंने आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द ऋषि, वो स्नान कर रहे थे नदी में, तो उन्होंने अंडर वाटर जाके उन ऋषि का जो है पैर को नीचे खींचा। तो उस ऋषि ने उनको श्राप दिया कि आप जो है क्रोकोडाइल बन जाओ, क्योंकि आप उसी तरह से मेरे पैरों को नीचे खींच रहे हो। तो ये दोनों को जो है श्राप मिला। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि अगले जन्म में उनका उद्धार किसने किया, स्वयं भगवान ने आके उद्धार किया। और उसके बाद गजेंद्र जो है, उन्होंने बहुत सुंदर प्रेयर्स की और वो भगवत धाम को लौट गए। तो हम देख सकते हैं कि जब श्राप मिला तो हम ये सोच सकते हैं कि कितना इनके साथ बुरा हो गया और क्या जरूरत थी इनको श्राप मिलने की। लेकिन एक्चुअली इट इज बिटर स्वीट मर्सी, क्योंकि बिटर उस टाइम लग रही थी, बट जब एंड हम रिजल्ट देखते हैं तो इट इज वेरी वेरी स्वीट कि भगवान ने स्वयं आके उनका उद्धार किया। ठीक है ना। तो बेसिकली कई बार क्या होता है, डिवोटीज को हमें अटैचमेंट हो जाती है कि ना हमारी लाइफ बिल्कुल पेनलेसली चलनी चाहिए, बिल्कुल कंफर्टेबल चलनी चाहिए, क्योंकि हम भगवान के भक्त हैं। तो ये बिल्कुल रॉन्ग कंसेप्शन है एक डिवोटी को कि हमारी लाइफ जो है बिल्कुल पेनलेस चले और बिल्कुल कंफर्टेबल चले, है ना। तो हमें बेसिकली इस चीज से अटैच नहीं होना। हमें ये समझना चाहिए कि अगर हमारी जिंदगी में या हमारे जीवन में कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो बेसिकली इट इज समथिंग टू टीच अस। इससे हमें कुछ ना कुछ लेसन सीखने की जरूरत है। और क्योंकि भगवान हमारे एवर वेल विशर हैं, भगवान कभी भी हमारा कुछ बुरा नहीं चाहते। तो भगवान ने अगर इसको सैंक्शन किया मेरी लाइफ में, अगर भगवान ने सहमति दिया कि ऐसा दुख मेरी लाइफ में आए, तो इसमें जरूर मेरे लिए कुछ अच्छा लेसन है सीखने के लिए। तो एक डिवोटी को इस तरह का फेथ होना चाहिए, है ना। और हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि अब हम भक्त बन गए हैं तो अब हमारी लाइफ जो है सही चलनी चाहिए, अब कोई सफरिंग नहीं आनी चाहिए, अब कोई डेंजरस सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि कितने सारे डिवोटीज और किस लेवल के डिवोटीज और उनकी लाइफ में कितने पेनफुल सिचुएशंस आई। जैसे हमने प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल कंसिडर किया, फिर पांडवों को हमने देखा, इवन हरिदास ठाकुर जिनके बारे में हम पढ़ते हैं और चैतन्य चरितामृत के अंत लीला में पढ़ते हैं कि किस तरह से हरिदास ठाकुर के ऊपर अत्याचार किया गया। उनको 22 बाजारों में ले जाके पीटा, जो है कोड़ों से मारा गया। तो क्यों मारा गया? क्योंकि वो भगवान का नाम ले रहे थे और वो क्योंकि मुसलमान खानदान से थे और कृष्ण के नाम का जप कर रहे थे, तो इसलिए उनको 22 बाजारों में पीटा गया। तो आप ये सोच सकते हैं कि क्या मतलब भगवान ऐसे कैसे हो रहा है, इतने उच्च कोटि के डिवोटीज के साथ ऐसे कैसे हो रहा है। तो हमें लेसन क्या लेने की जरूरत है कि एक्चुअली सफरिंग इज नॉट समथिंग व्हाट इट लुक्स लाइक। हमें कभी भी इस बात से अटैच नहीं होना, लाइफ में सफरिंग नहीं आनी चाहिए। इनफैक्ट जब सफरिंग आए तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम भगवान पे और डिपेंड कर पाए, है ना, और ज्यादा सरेंडर कर पाए और अपने इस विश्वास को जो है प्रगाढ़ बना सके कि भगवान मेरे एवर वेल विशर हैं और भगवान मुझे हर सिचुएशन में प्रोटेक्शन देंगे, है ना। तो जिस तरह से भगवत गीता में हम देखते हैं भगवान क्या कहते हैं, कौन्ते प्रति जाना ही नामे भक्ता प्रणश्यति, कि हे अर्जुन सब लोगों को ये बता दो कि मेरे डिवोटी या मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। तो हम जो भक्त है इसी बात पर डिपेंड करता है कि क्योंकि भगवान ने ये कहा है कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होगा, तो भगवान मुझे भी जरूर प्रोटेक्शन देंगे। लेकिन भगवान की जो प्रोटेक्शन उसको समझ नहीं पाते, है ना। हमें कई बार लगता है कि हमारे साथ ये कुछ हमें बीमारी हो गई या हमारे किसी प्रियजन जो है उनका शरीर छूट गया या उनको किसी तरह की बीमारी हो गई, तो ये जो है फिर भगवान ने प्रोटेक्शन कैसे करी। तो दो चीजें इसमें समझने की। पहली बात तो इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि हमेशा रहेगा, हर किसी को जाना है ना। सूनर और लेटर एवरीवन हैज टू गो।
एंड दूसरी बात क्या है, जब भगवान कहते हैं कि मैं अपनी प्रोटेक्शन दूंगा, तो भगवान ये नहीं कहना चाहते कि मैं आपके शरीर को प्रोटेक्शन दूंगा। भगवान ये कहना चाहते हैं कि मैं आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना, आपकी जो रिमेम्बरेंस है, जिससे कि आप मुझे याद रख सको, उसको प्रोटेक्शन दूंगा। आपके डिवोशनल फेथ को प्रोटेक्शन दूंगा। आपका जो भक्ति में विश्वास है, भक्ति में श्रद्धा है, उसको मैं प्रोटेक्शन दूंगा। ठीक है ना? तो हमें ये समझना चाहिए कि दिस इज एक्चुअली कृष्णस प्रोटेक्शन। भगवान की प्रोटेक्शन क्या है कि हमें अंत समय पे भगवान का स्मरण हो। हाँ, जो हमारी भक्ति में चेतना है उसको हम बचा सके, दैट इज एक्चुअली प्रोटेक्शन, नॉट द प्रोटेक्शन ऑफ दिस बॉडी। भगवान उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं कई बार, बट वी शुड नॉट थिंक कि भगवान हमेशा हमारे शरीर को या हमारे लव्ड वंस के देह को प्रोटेक्ट करे। So for a devotee this is most important, है ना, ये समझना कि जो हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन है या हमारे जो ऑपुलेंस है उसकी प्रोटेक्शन है या हमारे लव्ड वन की प्रोटेक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है। दैट इज ओके। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज प्रोटेक्शन ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये सब टेम्परेरी है। हमारी अपनी बॉडी, हमारे रिलेटिव्स, ये सब टेम्परेरी है। हम शरीर छोड़ेंगे, फिर दोबारा जन्म होगा, फिर दोबारा नए सेट ऑफ रिलेटिव्स आएंगे, नए सेट ऑफ बॉडीज आएंगे, फिर शरीर छोड़ेंगे, फिर ये प्रोसेस रहेगा। इसीलिए जो डिवोशनल प्रोटेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलेंगे। तो दैट इज द की है ना? तो अब हम ये क्वेश्चन आ सकता है कि अच्छा ठीक है, हमने सब सुना कि भगवान की कृपा 2 प्रकार की होती है और भगवान की कृपा हमें हर सिचुएशन भगवान की कृपा देखनी चाहिए, लेकिन भगवान की कृपा को एक्चुअली में अटेन करने का प्रोसेस क्या है? तो ये हमें समझना चाहिए कि वैष्णवों को अगर हम प्रसन्न कर पाते हैं या वैष्णवों की सेवा करके हम उनको प्रसन्न कर देते हैं, तो वो एक्चुअली वो तरीका है भगवान प्राप्त करना, है ना? तो अगर वैष्णव हमसे प्रसन्न नहीं है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमें कृपा प्राप्त नहीं हुई भगवान की। अगर वैष्णव प्रसन्न है तो भगवान की हमें कृपा प्राप्त हुई, और वैष्णव प्रसन्न नहीं है तो भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हुई। तो और अगर हमें कृपा मिलेगी तो उससे क्या होगा? तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान बताते हैं इसको 14 चैप्टर, एक्चुअली ब्रह्मा जी बताते हैं 14 चैप्टर ऑफ 10th कैंटो। इसमें ये आता है कि जो व्यक्ति भगवान के जो चरण है उनकी शरण लेता है तो वो उसके लिए किस तरह से एक्ट करते हैं? बोट की तरह, बोट यानी नाव की तरह, जिसमें बैठ के वो भव सागर को पार कर सकता है। और भव सागर का साइज क्या हो जाता है? जब कोई व्यक्ति भगवान के चरणों की शरण लेता है तो उस भव सागर का साइज उतना हो जाता है जैसे एक गाय के बच्चे के खुर में अगर खुर का निशान होता है तो वहां जितना पानी इकट्ठा होता है तो उतना बड़ा उस भव सागर का साइज हो जाता है, और भगवान के चरण जो है वो बोट बन जाते हैं, जिससे एक व्यक्ति इस जन्म मरण के चक्कर से आराम से बाहर निकल सके, है ना? तो जब एक भक्त की लाइफ में एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आती है, एक ऐसी सिचुएशन आती है विच इज नॉट प्लेजेंट, तो एक भक्त का क्या मूड होना चाहिए? तो एक भक्त का मूड भक्त का मूड होना चाहिए कि ये मेरे पास्ट कार्मिक एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है, मैंने पिछले जन्मों में जो कर्म किए हैं उसकी वजह से मुझे इस भुगतना पड़ रहा है। हाँ, और उसका ये भी मूड होता है कि मैं इससे बहुत ज्यादा मेरे साथ बुरा होना चाहिए था, लेकिन भगवान अपनी कृपा से मेरी सफरिंग को बहुत रिड्यूस कर दे रहे हैं। भगवान की कृपा से मेरी जो सफरिंग है बहुत रिड्यूस हो गई है, और भक्त को ऐसा लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जिससे मैं भगवान के साथ अपने संबंध को और टाइट बना सकता हूँ, और स्ट्रेंथन कर सकता हूँ, और प्रगाढ़ बना सकता हूँ। और उसे ये भी समझना चाहिए कि क्योंकि भगवान के सैंक्शन के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो अगर भगवान ने इस सिचुएशन को मेरी लाइफ में सैंक्शन किया है तो ये मेरी भलाई के लिए है। हाँ, और इसीलिए भक्त कभी भी जब भी उस पर कोई भी ऐसे दुख में स्थिति आती है तो कभी भी वो भगवान को ब्लेम नहीं करता। हाँ, तो हम कैसे, अब इसको हम किस तरह से अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जब हमारी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आती है, सफरिंग की सिचुएशन आती है, तो हमें पहले तो प्रे करना चाहिए कि भगवान हम जानना चाहते हैं कि आप हमें क्या लेसन सिखाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपने इसको सैंक्शन किया है तो इसमें मेरे लिए कोई ना कोई लेसन जरूर है, और मैं आपसे ये प्रे करना चाहता हूँ कि मेरे को ये लेसन आप रिवील करिए कि क्या मुझे सीखने की जरूरत है। और हमें ये भी प्रे करना चाहिए कि हम भगवान के प्लान को एक्सेप्ट कर सकें। बहुत बार जब हमारी लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम जो है उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते, है ना?
तो हमें इसके लिए प्रे करना चाहिए कि भगवान आप मुझे स्ट्रेंथ दीजिए कि ये जो सिचुएशन है इसको मैं आपका प्लान समझकर एक्सेप्ट कर सकूं। और एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका है कि अगर रोज हम जो है भगवान के लिए 10 थैंक यू सेंटेंसेस लिखें, है ना। तो ये दिस इज अ प्रैक्टिस जो हमारे एक टीचर ने हमें बहुत सालों पहले बताई थी, एंड आई डू समटाइम्स। उस टाइम तो मैं रेगुलरली करती थी, बट अभी भी मैं कई बार करती हूँ कि थैंक यू मैं लिखती हूँ कि भगवान किस किस चीज के लिए मैं आज थैंकफुल हूँ। तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी लाइफ में इतना कुछ है, देयर इज सो मच दैट वी कैन बी थैंकफुल फॉर एंड वी शुड बी थैंकफुल फॉर। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस चीज पे फोकस नहीं करते जो एक्चुअली में भगवान ने हमें स्वीट मर्सी के रूप में प्रदान किया है। हम किस चीज पे फोकस करते हैं जो हमारी लाइफ में सही नहीं चल रहा। तो जब हम इस तरह के माइंडसेट को बनाते हैं कि हम भगवान की कृपा को देखना शुरू करें, हर चीज में थैंक यू करना शुरू करें, तो we'll see कि how our perspective changes, कि किस तरह से हमारा नजरिया बदल जाता है हर चीज को देखने का, और हम ये इस बात को अप्रिशिएट कर पाते हैं कि हमारी लाइफ में जो सिचुएशन आई है ये हमारी एक्चुअली भलाई के लिए है। दिस इज कृष्णा's bitter mercy. So this is where we will end. So if there is any question, we'll be happy to answer. Hare Krishna. Thank you so very much, Mataji. And इन्होंने, आप देखिए डिवोटीज की कितना एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक माताजी ने बड़ी अच्छी तरह से समझाया, और न केवल समझाया बल्कि उसका कैसे उसको सॉल्व करें और कैसे उसको हम चेंज कर सकते हैं पॉजिटिव मैनर में, वो बताया। सो थैंक यू सो वेरी मच प्रभु जी एंड माताजी। सो डिवोटीज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन वी कैन रेज योर हैंड एंड देन वी कैन आस्क क्वेश्चंस। यस शिवानी माताजी, प्लीज गो। Hare Krishna Mataji and Prabhuji. Krishna, Dandavat Pranam. All glories to Krishna Prabhupada. All praise to Mataji, Krishna. first question is from Meenakshi Mataji. She is watching on Facebook due to some connectivity issue. Hare Krishna, Dandavat Pranam. Thank you so much for such a wonderful class. Very helpful for present situation. By mercy of Srila Prabhupada and devotees, we get to know how to face difficult situations in life and how to depend on Krishna. But actually, when difficult situation comes into life, these teachings rarely comes in our mind and we feel bewildered. What to do in that condition? Yes, मैंने ब्रीफली मेंशन किया था कि जब सिचुएशन आती है और अगर हमारे बहुत किसी क्लोज दायरे में आती है, तो इमीडिएटली हमारा जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है कि वी ग्रीव। हाँ, हमें मतलब वी बिकम सैड और वी क्राई, वी ग्रीव। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी शुड नॉट थिंक कि अगर हम रो रहे हैं या हमें कुछ ग्रीफ महसूस हो रहा है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है। बेविल्डरमेंट का क्या मतलब है कि हमें ये विश्वास खत्म हो जाना कि भगवान हमारे एवर वेल विशर हैं। तो मीनाक्षी माता जी जब ये कह रहे हैं कि मैं बेविल्डर हो रही हूँ, आई एम श्योर कि उनको ये बेविल्डरमेंट नहीं है। कि बेविल्डर होने का मतलब है कि हमें ये हमारा फोकस हट जाना कि भगवान हमारे एवर वेल विशर हैं, या भगवान पे से फेथ उठ जाना, उसको बेविल्डरमेंट कहते हैं भक्त की लाइफ में, है ना। तो भक्त भी जो है वी फील सेपरेशन। हम लोग प्रभात बहुत बार ये बात बोलते हैं कि हम स्टोन नहीं है ना, हम जो है पत्थर नहीं है। वी आर ह्यूमन बीइंग्स विद इमोशंस। हमारे इमोशंस हैं, तो कभी जब हमारे आसपास ऐसा कुछ दुखद कुछ होता है तो इट इज नेचुरल टू फील लाइक दैट। सो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि एक डिवोटी जो है वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता ऐसे सिचुएशन में, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन बेविल्डरमेंट का क्या मतलब है कि वी डू नॉट लूज फेथ इन कृष्णा। एक छोटा सा पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगा। जब कोई बहुत बड़ी डिफिकल्टी आती है, जैसे अभी हम पीछे के दिनों में देख रहे थे, तो ऑब्वियसली हम लोग ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, एंड इन दैट टाइम समटाइम्स आवर स्पिरिचुअल लाइफ बिकम्स लिटिल रिड्यूस्ड। बट नॉर्मल केसेस में अगर हमारा कोई डिफिकल्ट पीरियड आ रहा है तो हम देखते हैं कि कई बार भक्त जो है अपनी भक्ति कम कर देते हैं, ना, जैसे राउंड्स करना कम कर देते हैं, रीडिंग कम कर देते हैं। बट एक्चुअली होना क्या चाहिए कि जब भी डिफिकल्ट पीरियड आए, सो वी शुड इंक्रीज आवर स्पिरिचुअल लाइफ, वी शुड इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ। उससे क्या होगा कि वी विल जो वो डिफिकल्टी आ रही है उसका जो रियल बेनिफिट हमें लेना है, भक्ति में और डीप जाना और इंटेंसली अडॉप्ट करना भक्ति को, वो हम एक्चुअली कर पाएंगे। और अगर हम उस पीरियड में कम कर देते हैं तो वो हमारा उल्टा और नुकसान है। एक तो सफरिंग आ रही है,
और दूसरा जो अपॉर्चुनिटी वो सफरिंग हमें दे रही है भक्ति में आगे बढ़ने का, वो अपॉर्चुनिटी भी हम लूज कर देते हैं बाय रिड्यूसिंग आवर स्पिरिचुअल इंटेंसिटी और क्वालिटी। बट वेरी गुड पॉइंट। जब हम इंक्रीज करते हैं या अपने मतलब मेंटेन करते हैं अपने साधना को और अपने सारे प्रैक्टिस को, तो क्या होता है दैट वी कैन एक्चुअली फील कृष्ण शेल्टर। हम सब महसूस कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम भगवान के शेल्टर में, भगवान पे आश्रित हैं, भगवान ने हमें अपना आश्रय दिया हुआ है ना। जब हम उसको कम कर देते हैं तो देन इट बिकम्स लिटिल बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। बट कोई बात नहीं, अगर हमें उस टाइम अगर हमारा हो भी रहा है कम फॉर वट एवर रीजन, वी आर ग्रीविंग और वट एवर रीजन, बट एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके हमें वापस ट्रैक पे आ जाना चाहिए और हमें समझना चाहिए, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि एक्चुअली में भगवान ने ये सिचुएशन करी है फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई भी व्यक्ति इस मटेरियल वर्ल्ड में हमेशा के लिए नहीं रह सकता। दैट रियलिटी वी ऑल नो। सो वी हैव टू एक्सेप्ट कि कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता। और दूसरी बात जो है कि अगर भगवान ने ऐसा अरेंज किया है और स्पेशली जब भक्तों के साथ ऐसा होता है तो हम ये समझें कि उस भक्त की भलाई के लिए भगवान ने किया है, भगवान उनको और बेटर डेस्टिनेशन देंगे। ये हमें समझना चाहिए कि भगवान जो है एक भक्त को एक बेटर डेस्टिनेशन देंगे। सो देयर इज नथिंग टू रियली ग्रीव फॉर। हम ये ना सोचें कि अरे वो यंग थे या कोई ऐसे क्यों चले गए, वो भक्ति प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ। मैंने कई जो बहुत सीनियर डिवोटी से बात करी इस बारे में कि कई भक्त हैं जो बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे थे और वो क्यों चले गए। तो फिर यही कंक्लूजन निकला कि भगवान जो है उनको, जब भगवान ऐसा एक भक्त के साथ करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि भगवान उनको बेटर डेस्टिनेशन पे ले जा रहे हैं। कई बार किसी की बॉडी ओल्ड होती है तो भगवान क्या सोचते हैं कि इसको एक अच्छी बॉडी दी जाए ताकि ये भक्ति और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। तो हमें तो इस तरह से जब हमें समझ में आता है देन वी डू नॉट गेट बिविल्डर्ड। एक और पॉइंट सीनियर डिवोटी ने बताया था बहुत कि जैसे जो यंगर डिवोटीज हैं, कई बार अगर उन्होंने शरीर छोड़ा तो उसका भी लॉजिक होता है कि आगे उनको सफरिंग आनी होती है। तो ऐसा भी होता है कभी कभी कि भगवान उनको दोबारा जन्म देते हैं जिससे कि वो सारी सफरिंग से बच जाएं और दोबारा नई बॉडी में जो है अपनी भक्ति स्टार्ट कर पाए। सफरिंग इन द टर्म्स की कई बार ऐसा उनके मतलब पास्ट कार्मिक रिएक्शंस की वजह से ऐसी सिचुएशन आनी होती है कि उनकी भक्ति कम हो जाए या भक्ति से गिर जाए, तो कई बार भगवान उस साइकिल को वहीं काट देते हैं और उनको वहां से निकाल के दूसरी डेस्टिनेशन देते हैं, विच इज बेटर डेस्टिनेशन। So I hope we were able to answer her question to some extent. Thank you so much, Mataji. I also have one question. Mataji, when difficulty comes, we keep on remembering Krishna, but as soon as it goes, slowly वो remembrance भी धीरे धीरे कम होती जाती है. So how can we maintain that so that at least जो मतलब हम close अगर और क्लोज कर पाए अपने आप को, लाइक वी कैन गेट मोर क्लोज। शिवानी वही बोल रहे हो जो कुंती महारानी कहती हैं कि जब डिफिकल्टीज आते हैं तो आई कैन रिमेम्बर यू मोर। यस, इट इज ट्रू दैट ऐसा होता है। तो वी शुड टेक दिस एज लाइक वेरी स्पेशल अपॉर्चुनिटीज कि भगवान हमें एक्चुअली दिखा रहे हैं कि किस तरह से मेरे पे डिपेंड किया जा सकता है, और अगर हम उसको प्रॉपरली यूज करते हैं तो इट हेल्प्स अस ग्रो, है ना। वो हमें एक बार उस चीज का टेस्ट आ जाता है भगवान पे डिपेंड होने का या भगवान पे आश्रित होने का, तो देन नेक्स्ट टाइम इट इज इजियर और एंड देन वी हैंकर फॉर इट। जब हम सब कुछ ठीक चल रहा था तो देन वी हैंकर फॉर दैट टेस्ट कि आई वांट टू डिपेंड ऑन द लॉर्ड, आई वांट टू डू दिस। सो इट हेल्प्स अस ग्रो इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ। एक पॉइंट जो मुझे बिकॉज दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम एंड आई आल्सो फेस इट ऑल द टाइम, तो एक और चीज जो मुझे लगती है बड़ी हेल्पफुल है वो है प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना। क्योंकि उससे एडवांटेज क्या होता है कि जैसे ही प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेंगे ना तो बार बार प्रभुपाद जी इस बात को रिमाइंड कराते हैं कि इस जगत में अगर हम हैं तो हमें कितने दुख झेलने पड़ेंगे, और ये फैक्ट है ना। तो अगर हम भूल जाते हैं, जो कि हम अक्सर भूलते रहते हैं, तो जैसे हम प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ेंगे और अगर हम वो रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे हैं तो हमें याद आता रहता है कि अरे हाँ, एक्चुअली दिस लाइफ इज वेरी टफ, सो इट इज बेटर एंड ट्रांजिटरी। और जो अभी हमें फेज ऐसा लग रहा है कि इट्स एक्चुअली अ हैप्पी फेज या इस टाइम दुख नहीं है, तो इट इज जस्ट अ टाइम बिटवीन टू पीरियड्स ऑफ सफरिंग।
तो जब ऐसा हमें बार बार प्रभुपाद जी रिमाइंड कराते हैं, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुने या प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़े, तो प्रभुपाद जी एक अर्जेंसी आप में डालते हैं, है ना। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अर्जेंट है, बहुत बहुत अर्जेंट है, मतलब आप यहाँ पे रिलैक्स मत करिए, यहाँ पे जब आप आए तो ये बहुत अर्जेंट सिचुएशन है, बहुत डेंजरस सिचुएशन है। तो दैट आल्सो हेल्प्स अ लॉट इन मेंटेनिंग आवर कॉन्शियसनेस। अगर हम रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो फिर हम भूलेंगे नहीं कि एक्चुअली यहाँ पे कितने दुख हैं और इनसे बाहर निकलने के लिए हमें मेहनत करनी है। Thank you, Prabhuji. Thank you, Mataji. Hare Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, Neha Mataji. Okay, I think maybe some connection issue. हरे कृष्णा प्रभु जी, Yes, Hare आपने मेरा नाम लिया था? Yes, Mataji. मैं किसी का एक सेकंड। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। Thank you for this wonderful session. I always look forward for your association. And प्रभु जी, माता जी, एक्चुअली मेरे साथ क्या होता है कि कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मैं I rely on Krishna, I rely on Prabhupada, and I'm always thinking about them at that time. But ये भी लगता है मुझे, मेरे दिमाग में ये भी चलता है कि कुछ कर्म है मेरे जो पुराने पास कर्म हैं, जिसकी वजह से ये डिफिकल्टीज आ रही हैं या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और मैं ये भी सोचती हूँ अगेन कि 100% के बजाय अब 20% हो गया बिकॉज आई एम इनटू भक्ति। बट आई कीप टेलिंग माई माइंड, ट्रेनिंग माई माइंड कि दिस इज माई कर्मा एंड कृष्णा इज प्रोटेक्टिंग मी, प्रभुपाद इज प्रोटेक्टिंग मी, ही इज मेकिंग मी स्ट्रॉन्ग। बट स्टिल कहीं ना कहीं एक फियर होता है कि अब कुछ ये ना हो जाए, अब ये ना हो जाए। दैट मीन्स क्या मेरा फेथ कम है? मतलब आई एम रियली कंफ्यूज, फेथ भी कम मुझे लगता है। और फिर मुझे लगता है मैं क्यों नहीं कंप्लीटली सरेंडर करती हूँ कृष्णा को, प्रभुपाद को। You're already on the path. आप already you are doing जो एक भक्त को करना चाहिए। आप already ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे पास कार्मिक रिएक्शन है, या फिर भगवान जो मेरे को दे रहे हैं दुख ये बहुत रिड्यूस करके दे रहे हैं, तो आप ऑलरेडी राइट पाथ पे हो। You know, just a little bit more time and you will develop that full faith that Krishna is my ever well wisher. जो पॉइंट्स आपने बोले वो बिल्कुल ठीक है। जिस पाथ पे आप हो यू डूइंग एग्जैक्टली राइट। अब सिर्फ डिफरेंस क्या है कि जो स्टेज हम अचीव करना चाहते हैं और जहां हम हैं उसमें टाइम लगता है। इट इज नॉट इंस्टेंट, है ना। वी जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग दिस एंड वन डे वी विल रीच देयर। You're on the right track, so you should not worry. Thank you, Madam. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. We have a question from Vrat Sevika, Vrat Sakhi Devi Mataji. She's saying, how do we understand while we are praying for relief from that pain, as due to pain, unable to concentrate on spiritual activities? Same if we beg for relief for others. Sorry, Prabhuji, I didn't get it. Second part I didn't get. She's saying similar thing if we are paying for others to, others to get relief from the pain, like that. Actually, yes, हमारा नेचुरल जो रिएक्शन है यही होता है कि भगवान ये पेन कम कर दो, हम नहीं कर पा रहे। बट एक डिवोटी को अपने मूड को थोड़ा सा ना ट्वीक करना चाहिए, थोड़ा सा स्विच करना चाहिए कि अगर हम पेन जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो हमें भगवान से ये प्रे करना चाहिए कि भगवान आप ये जो सिचुएशन है आप मेरे को इसकी शक्ति दीजिए कि मैं इसको बर्दाश्त कर सकूं, और इसमें ये चीजें मैं करना चाहती हूँ और जो मैं नहीं कर पा रही, तो आप मेरे पे ये कृपा करिए कि मैं आपका प्लान समझ सकूं और जो मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ वो मैं आपको ऑफर कर रही हूँ कि मैं आपकी सेवा इस तरह से करना चाहती हूँ जो नहीं कर पा रही। तो नाउ इट इज अप टू यू। अगर आप इस सिचुएशन को ऐसे ही रखना चाहते हैं आई विल एक्सेप्ट, और अगर आप चाहते हैं कि मेरा पेन रिड्यूस हो जाए ताकि जिस तरह से मैं आपका सेवा करना चाहती हूँ वैसे कर सकूं, दैट इज ऑल्सो गुड। सो एक भक्त को ऐसा मूड रखना चाहिए कि भगवान जिस भी सिचुएशन में आप रखेंगे, मारो भी राखो भी जय इच्छा तो मार, है ना, कि जिस भी सिचुएशन में आप रखेंगे मेरे को, तो वी शुड आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट इज। बट ये आसान नहीं है जो मैं कह रही हूँ, ये बहुत मतलब इट इज डिफिकल्ट एंड वी हैव टू प्रैक्टिस। बट अगर हम किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं तो सूनर और लेटर वी विल रीच देयर। सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग फ्रॉम रिलीफ फ्रॉम पेन फॉर व्हाट वी शुड आस्क फॉर,
that give me strength, या give me strength to accept your plan, या भगवान give me strength to bear this pain, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि भगवान ये पेन जो है, मतलब मैं जो आपसे कंप्लेन नहीं करना चाहती, लेकिन ये पेन की वजह से आई एम नॉट एबल टू प्रैक्टिस और सर्व यू द वे आई वांट टू, तो आप उसके लिए मेरे को जो है और ये स्ट्रेंथ दीजिए कि मैं आपके प्लान को एक्सेप्ट कर पाऊं। और जो एक पॉइंट सीता रानी ने बोला था वो मैं रिपीट करूंगा कि जब भी कोई भी डिफिकल्टी डिवोटी को आ रही है तो वो ये भी प्रे करता है कि भगवान ये जो डिफिकल्टी मेरे पास आ रही है इससे आप मुझे कोई मैसेज देना चाहते हैं, आप मुझे कुछ समझाना चाहते हैं। बिकॉज डिवोटी को जब भी कोई डिफिकल्टी आती है तो भगवान उसके साथ एक मैसेज देते हैं कि जिससे कि उस मैसेज को समझ के हम भक्ति में और आगे बढ़ सकें, जो हमारा रियल पाथ है उसमें आगे बढ़ सकें। और वो इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि वो मैसेज क्या है। सो एक भक्त वो भी प्रे करता है कि भगवान इस डिफिकल्टी से जो मैसेज मुझे समझना है, प्लीज हेल्प मी टू अंडरस्टैंड दैट मैसेज। सो आसान नहीं है, अगेन आई रिपीट कि मतलब ये बोलना बहुत आसान है लेकिन प्रैक्टिस करना इज नॉट दैट इजी। सेम टाइम कि अगर हम इसका अभ्यास करते रहेंगे, इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करते रहेंगे तो एंड वी विल फेल, ऐसा नहीं है कि हम फेल नहीं करेंगे, हम फेल भी करेंगे कि हमने प्रे किया, फिर वन डे सडनली वी गेट सो टायर्ड वी टेल कृष्णा जस्ट रिलीव मी ऑफ दिस पेन। हाँ, सो दैट विल आल्सो हैपन, बट वी शुड अंडरस्टैंड कि अगर हम सही मूड को प्रैक्टिस करने की कोशिश करते रहेंगे देन वन डे वी विल बी सक्सेसफुल, वन डे विल एक्चुअली बी एबल टू डेवलप दैट मूड। थैंक यू माता जी। एक्चुअली हम लोग बड़े हुए हैं कि सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, तो वो थोड़ा सा देर लगती है उसको जाने में। यस सर, यस अमित प्रभु, गो अहेड प्लीज। हरे कृष्ण। Almost answered. My We question can't was hear you, Amit almost- Prabhu. Just speak loudly. Is We it, can't. is it audible? Is it audible? Come closer to the mic, Prabhuji. Hare Krishna. इस पे ठीक नहीं है प्रभु जी, आप फोन पे या किसी पे आइए, इस पे ठीक नहीं है। या आप टाइप कर दीजिए अपना क्वेश्चन अगर आप वैसे करना चाहते हैं। Hare Krishna. Try once again. Yes, Prabhuji. Is it fine? Yes. No, Yeah, better. Hare Krishna Mataji, Prabhuji, Dandavat Pranam. My question almost has been answered. My question has been almost answered. My next question is that, for example, some devotee leaves the body and some devotee has left the body and they have dependents also. For example, wife is there or they have mother, small kids. And for example, they have lost the faith on the Krishna. And earlier they were very sincere and now they say that we don't want to continue bhakti because Lord has done this. So how can we help them? Very good question Prabhuji. Actually multiple levels. फर्स्ट कि कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति शॉक में है बिल्कुल कि ऐसा कुछ हो गया मेरे साथ, तो उस फेज में उनको हमें ग्रीव करने देना चाहिए कि ओके एट दिस पॉइंट इन टाइम आप नहीं प्रैक्टिस करना चाहते, नो प्रॉब्लम, आप यू टेक योर टाइम। आप और हर किसी का ग्रीविंग प्रोसेस अलग होता है, कोई किसी तरह से ग्रीव करता है, कोई किसी तरह से ग्रीव करता है, एंड वी शुड अलाउ देम देयर ओन ग्रीविंग प्रोसेस। And at the same time, what we can do is we can, as devotees, we should keep praying कि भगवान आप उनके faith को बढ़ाइए, उनके faith को आप इस तरह से channel करिए कि उनको आप में faith दोबारा से आए। As devotees, we should try to create opportunities कि वो दोबारा से भक्ति में आ सकें। हाँ, maybe by sending them प्रसाद, हम उनको प्रसाद भेज सकते हैं बार बार। And जब वो थोड़े से और मतलब स्टेबल हो जाएं तो हम उनको कीर्तन में बुला सकते हैं कि आप आप कुछ मत करो, कीर्तन में आ जाओ बस, है ना, आओ कीर्तन सुनो, आपको अच्छा लगेगा। तो इस तरह से वी कैन अगेन एंड देन स्लोली व्हेन दे स्टार्ट व्हेन दे कम आउट ऑफ दैट फेज एंड व्हेन दे सी पॉजिटिविटी then they might just come back. Also Prabhuji, like the rest of the devotees, they are compassionate. So क्या होगा कि हम उनको help करें, मतलब this is a situation which is like not very easy, especially for that family. तो क्या है कि जो बाकी devotees हैं उनको help करें. Lot of times financial help की requirement रहेगी, monthly basis पे financial help की requirement हो सकती है, उनको कुछ सर्टिफिकेट्स चाहिए हैं, उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई हेल्प चाहिए है,
कई बार उनको पता नहीं होता कि बच्चे आगे क्या पढ़ सकते हैं। तो क्या है कि जब डिवोटीज उनको हेल्प करेंगे तो उनका फेथ डिवोटीज में बढ़ेगा। At that particular point of time, they might not be performing devotional service, but what is important is that they slowly build up the faith on devotees. तो जब डिवोटीज उनकी हेल्प करेंगे तो उनको ये रियलाइज होगा कि जब मेरा डिफिकल्ट पीरियड आया था तो उस वक्त भी डिवोटीज ने मुझे हेल्प किया, फाइनेंशियली हेल्प करी, उनके पास खड़े होके उनको कोई भी जो इंफॉर्मेशन चाहिए है ना, बहुत तरह से डिवोटीज उनको हेल्प कर सकते हैं। हमारे साथ ऐसे बड़े सारे एग्जांपल्स आ रहे हैं दिल्ली टेम्पल में भी, जिनमें डिवोटीज चले गए हैं तो उनकी वाइफ्स उनके बच्चों को हेल्प करना, आगे वो क्या पढ़ाई कर सकते हैं, फाइनेंशियली मंथली बेसिस पे कई सारे डिवोटीज इकट्ठे होके उनको रेगुलर बेसिस पे, मंथली बेसिस पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से उनका डिवोटीज में फेथ बना रहेगा, और जब डिवोटीज में फेथ बनेगा तब डिवोशनल लाइफ में उनका फेथ डेवलप हो जाएगा, है ना। तो अगर उनको फाइनेंशियल इशू नहीं है तो वी कैन आल्सो हेल्प इन अदर वेज बाय सेंडिंग देम प्रसादम ऑन अ रेगुलर बेसिस। हाँ, और उन मतलब थोड़ा टाइम उनको जैसे हम दे सकते हैं 1-2 महीने की, वो उनका जो वो फेज है वो निकल जाए फेज, एंड उसके बाद वी कैन स्टार्ट टॉकिंग टू देम एंड नॉट टॉक अबाउट डिवोशनल थिंग्स, जस्ट लाइक फ्रेंडली टॉक, एंड दैट्स हाउ वी गेट देम स्टार्टेड अगेन। फिर स्लोली आप उनको बुला सकते हैं कीर्तन प्रोग्राम्स में, और धीरे धीरे उनका फेथ दोबारा से लाया जा सकता है। मैंने देखा नेहा माता जी पूछ रही हैं कि जब ऐसे लोगों से हम बात करते हैं तो वो ब्लास्फेम करना शुरू कर देते हैं कृष्ण को। तो we should not take it very seriously. They are blaspheming right now because they have gone through a shock which is quite intense. तो इसको हमें बहुत ज्यादा मतलब ऐसा नहीं लेना चाहिए कि देखो उन्होंने क्या कर दिया। And I think that they don't realize right now कि हम कर क्या रहे हैं. It is just a reaction to a situation which is not acceptable to them. इसको बोलते हैं कोमल श्रद्धा। जब डिवोटी का फेथ जो है बहुत स्ट्रांग नहीं होता, क्योंकि क्या है डिफरेंट स्टेजेस पे डिवोटीज हैं, तो जो कोमल श्रद्धा होती है जब तक कि वो बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है डिवोशनल लाइफ में, तब ऐसा होता है। तो हमें भी बेबिल्डर नहीं होना चाहिए, क्या चाहिए डिवोटी तो ऐसे कैसे बिहेव कर रहा है, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स डिवोटीज आर नॉट वेरी स्ट्रांग, सो it is a phase, it happens step by step, so we have to be patient with them, and we should not take it very seriously. If it continues after this for like 6 months after, 1 year after, then we can withdraw and say, okay, maybe Krishna has some plan for them, and maybe, but अभी तो अगर किसी के साथ अभी हुआ है कुछ महीने, तो हमें मतलब उनको ये देना चाहिए benefit of the doubt कि they were under a shock and that's why they're behaving like and this. Support them in whichever way, yeah, devotees can. Prasadam is the best way. अगर कोई यहाँ पे नहीं भी आए तो हम उनको प्रसाद भिजवा सकते हैं. We can courier some prasad to them, something. So that way we can help. We can pray for them for sure. Thank you, Mataji. And Mataji, sometimes, is it audible? Yes. Yes. So if sometimes they have some family issues, just like in-laws and all, should we interfere in those issues, or should we keep ourselves away? I don't get you. What kind of issues, Prabhu? In-laws का families issues. डिपेंड करता है एक्चुअली, हर चीज बहुत सब्जेक्टिव है कि किस तरह का इशू है, उससे आपको कितना मतलब आपको कितना इम्पैक्ट आ रहा है, या आपका इंटरफेरेंस ठीक है नहीं है। तो हर स्पेसिफिक इशू को स्पेसिफिक एक अलग तरीके से डील किया जाता है। इट्स नॉट लाइक एक ब्लैंकेट से सोल्यूशन नहीं है इसका कि हर बार हम इग्नोर ही कर सकते हैं या हर बार हम इन्वॉल्व भी हो सकते हैं। हर सिचुएशन को देखना पड़ेगा सिचुएशन के हिसाब से कि क्या करना चाहिए उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। देयर मे बी सम सिचुएशंस इन व्हिच वी डोंट नीड टू गेट इन्वॉल्वड एट ऑल, और हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे हम इन्वॉल्व होके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं, जिससे कि उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस में मतलब ऐसा लगे कि डिवोटीज अच्छे होते हैं, और मतलब दे बिकम पॉजिटिव टुवर्ड्स कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। तो हर सिचुएशन को इवैल्यूएट अलग तरीके से करना पड़ेगा। एक इसका कोई एक आंसर नहीं है प्रभु जी। Okay, thank you, Mataji. Hare Krishna. So do we have any other question? So Hare Krishna.
no more question, Mataji. So I think the session you took was very, very helpful. और एक डिफिकल्ट टॉपिक एंड ए कॉम्प्लेक्स टॉपिक माता जी और प्रभु जी ने दोनों ने बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने समझाया, तो हमारी भी जड़ बुद्धि में कुछ अकल आएगी माता जी। It's actually your compassion and kindness towards us कि आप हमें बुला के थोड़ा सा मतलब give us an opportunity to speak and आप थोड़ा में चढ़ा देते हो थोड़ा हमारा। One more point actually I like to say is that Giriraj Prabhu is मतलब मुझे बहुत पसंद है वो एज अ डिवोटी, बिकॉज उनका मूड हमेशा रहता है कि प्रीचिंग करी जाए, भक्तों को और आगे लेके जाया जाए। तो आई रियली अप्रिशिएट दैट। और पिछले 1-1.25 साल में मैंने और मेरी वाइफ ने बहुत सारी प्रीचिंग एक्टिविटीज सिर्फ प्रभु जी को देख के शुरू करी हैं। Yeah, he starts something, we get inspired, and then we just copy it. Just copy him, and we have, we are getting so much success just by seeing what he is doing. We get so inspired, and it is really nice. So why I am saying this is, not to praise him, but to tell all these devotees who are here that if you take help from him, if you follow him, he is on the right path. So just by following him, we can achieve a lot. So that is what I'm trying to say, because his mood is very nice. So we please take help from him, because we both are really benefiting just by seeing what he does. Yeah. So बहुत अच्छा है। प्रभु जी शेयर करते हैं and we immediately copy it here. हरे कृष्ण। क्यों एम्बैरेस करते हैं प्रभु जी? No, So not we at are all. very grateful to both अनंत चैतन्य प्रभु और सीतारानी माता जी। जितनी मेरी कृष्णा कॉन्शियसनेस में उम्र नहीं है, उतने जो है उसके पता नहीं कितने गुना माता जी और प्रभु जी का एक्सपीरियंस है कृष्णा कॉन्शियसनेस में। और उम्र से ही नहीं बल्कि रियलाइजेशन से ऑल्सो, दे आर वेरी मच सीनियर, एंड दैट्स व्हाई वी ट्राई कि हम प्रभु जी और माता जी को सुने, इनका संग ले सकें और कुछ भक्ति में हम लोग जो है किसी तरह से टिके रहे। So thank you for your kindness upon us. Thank you so much. Hare Krishna. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ग्रेस अनंत चैतन्य प्रभु की जय, ग्रेस सीतारानी माता जी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Thank you, Prabhuji. Thank you, Mataji. Thank you. Hare Krishna, Mataji. हरे कृष्ण प्रभु जी। They left, they had a busy schedule, so thank you so much। आप सब लोगों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और I hope the session was beneficial, and Yes. so thank you so very much। Hare Krishna। All glories to हरे God। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।